پلی جو پلی جو نعرہ نعرہ پلی جو نعرہ نعرہ پلی جو دمادم پلی جو دمادم پلی جو دمادم پلی جو لیڈر پلی جو لیڈر پلی جو افغان بگوڑا نامنظور افغان بگوڑا نامنظور سندھ میں دھاریا نامنظور سندھ میں دھاریا نامنظور افغان بگوڑا نامنظور افغان بگوڑا نامنظور سندھ میں دھاریا نامنظور سندھ میں دھاریا نامنظور جاری ہے جاری رہندی جاری ہے جاری رہندی صحافی دوستو، آپ سب کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے۔ آج قومی عوامی تحریک نے یہ جو علامتی بھوک ہڑتال کی ہے پریس کلب حیدرآباد پہ، وہ 4 نکات پہ ایک طویل جدوجہد کا قومی عوامی تحریک آج سے آغاز کرنے جا رہی ہے۔ وہ 4 نکات ہیں۔ پہلا، سندھ میں افغان ریفیوجیز اور تمام ممالک سے آنے والے ایلیگل امیگرنٹس کو روکنا اور ان کی واپسی۔ 2، سندھ میں زمینوں پر، دیہاتوں پر وفاقی سرکار، صوبائی سرکار، بلڈرز، مختلف فورم، انسٹیٹیوشنز، اداروں کے قبضے اور ان قبضوں سے زمینیں آزاد کروا کر عوام کے حوالے کرنا۔ 3، سندھ میں پانی کی چوری اور سندھ کو پانی کا حصہ دینے سے انکار، جس کی وجہ سے سندھ کی زراعت تباہ ہو گئی ہے، اس کا خاتمہ۔ 4، سندھ کے 12,000 سے زائد ملازمین کو وفاقی نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پی ایس او، اسٹیٹ لائف، سوئی سادرن گیس، آئی بی، دوسرے اداروں سے ہزاروں ملازمین کو نکال دیا گیا ہے، اور سندھ میں بہت سے ہزاروں وہ ملازمین ہیں جو کانٹریکٹ پہ تھے، ان کو ریگولر پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کیا، اور ان 12,000 کو وفاقی حکومت اور دوسرے فورمز مل کر نکال رہے ہیں۔ ان 4 نکات پر آج ہم یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ہم یہ پورا مہینہ 1 سپٹمبر سے 1 اکتوبر تک سندھ کے ہر ضلع، ہر تعلقے میں احتجاج کریں گے۔ میں سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سندھ کے ایشوز پر واضح موقف اختیار کریں اور اسٹینڈ لیں، اور پاکستان کے لوگوں کو بتا دیں کہ سندھ میں ہم آدم شماری کا انفلکس برداشت نہیں کریں گے۔ دوستو، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، اس میں پہلے سندھ کے جزائر پر قبضے کا منصوبہ بنایا گیا، اس میں سندھ حکومت شریک تھی۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت میں سندھ کے لوگوں کے خلاف یہ جو ایلیگل امیگرنٹس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لاہور کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے صحیح فیصلہ کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم نہیں آنے دیں گے، مگر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے حامی بھر لی ہے۔ کراچی کے لیبر کے فلیٹس خالی کروا کر وہاں افغان پناہ گزینوں کو آباد کیا جا رہا ہے، وہاں سے فلائٹس آ رہی ہیں، چمن کا بارڈر کھولا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے دکھ سے، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ عام افغان مائیں بہنیں، بھائی ہمارے بھائی بہن مائیں بہنیں ہیں، مگر وہ عام غریب افغان کے پاس تو ملک سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ملک سے کون نکل رہے ہیں؟ جو یا تو مغربی ممالک کے سہولت کار تھے، یا وہ پڑوسی ملک کے سہولت کار تھے جس نے وہاں بلینز کی انویسٹمنٹ کی تھی اور پھر ناکامی ہوئی، یا وہ لوگ وہ ہیں جن کی انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ کیا سندھ کے لوگ بھول جائیں کہ سیون میں دھماکہ ہوا، شکارپور کی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا، شاہ نورانی پہ دھماکہ ہوا، مناوا کا پولیس اسٹیشن، لاہور آرمی پبلک اسکول، ان دھماکوں میں کون ملوث تھے؟ پاکستانی تو نہیں تھے، ان میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ملوث تھے۔ تو حکمران، خاص طور پہ وفاقی
इंतजामिया और वफाकी हुकूमत और रेफ्यूजीज कमिश्नर और सिंध हुकूमत क्यों ये सारे अफगानी सिंध में भेजना चाह रही है? आखिर सिंध इनके निशाने पे क्यों है? आखिर बहरिया की ज़मीनें भी सिंध की जाएं, जज़ायर भी सिंध के जाएं, मुलाजिम भी सिंध के निकाले जाएं। सिंध के मुलाजिमों को नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है। सुई गैस से, IB से, स्टेट लाइफ से 16,000 पाकिस्तान भर के मुलाजिम हैं, जिसमें 12,000 सिंध के हैं। वो मुलाजिम निकाले जा रहे हैं स्टेट लाइफ के, PSO के। इनको न सुना गया, न अटॉर्नी जनरल को सुना गया, न मौक़िफ़ सुना गया। उनको बर्खास्त करने का जारी कर दिया गया ऐलान। लॉ कहता है आडी आल्टरम पर्सन, आडी आल्टरम पार्टम, एवरीबडी शुड बी हर्ड बिफोर एनी डिसीजन। उनको तो सुना ही नहीं गया। तो ये ज्यादती है। और सिंध की ज़राअत तबाह कर दी गई है, सिंध की फसलें तबाह हैं। मैं आपके तवस्सुत से इस अलामती भूख हड़ताल से, जो कौमी अवामी तहरीक हमेशा सिंध के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कोई भी जुल्म सितम होता है, सबसे पहले कौमी अवामी तहरीक मैदान में निकलती है। ये हमारा वतीरा है, ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी रिवायत है। मैं सिंध के लोगों को कॉल दे रहा हूँ कि ये नोटिस करें कि आपके सरों पर इलीगल इमिग्रेंट्स कौन ला रहा है। इमरान खान की हुकूमत ला रही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ला रही है। बज़ाहिर ये दिखावट में एक दूसरे के खिलाफ बयानात जारी करते हैं। बज़ाहिर लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी वाले सख्त खिलाफ है इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब और उनके वज़रा के बयानात से भी लगता है, शेख रशीद साहब, फवाद साहब हमारे दोस्त, इन तमाम के बयानात से लगता है कि बड़ा पीपल्स पार्टी की करप्शन पे या बैड गवर्नेंस पे सख्त ये तकलीफ में हैं और बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। मगर जो फैसले हैं, जज़ायर का हो, डोमिसाइल्स का हो, नादरा के झूठे डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनाने का हो, या सिंध में इलीगल इमिग्रेंट्स लाने का हो, इसमें तो ये मुत्तफिक हैं। उसमें तो ये यक आवाज़ है। सारे पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, कराची खोल दिया गया है। मैं MQM को भी कॉल दे रहा हूँ। MQM के दोस्त हमेशा एहतजाज करते हैं कि भाई अंदरून सिंध से लोग आ गए। अंदरून सिंध से कितने लोग आते होंगे? 100, 200, 500 साल में, 2 साल में। और वो क्या करते होंगे? वो आके ठेला लगाते होंगे, सब्जी बेचते होंगे, दूध बेचते होंगे, गार्ड बनते होंगे, बावर्ची बनते होंगे, माली बनते होंगे कराची में। मगर ये जो अफगान रिफ्यूजीज आ रहे हैं, ये तो पूरे कराची के डेमोग्राफी को तब्दील कर देंगे। ये तो मुसल्लह हैं, जो कल धमाके में 170 से लोग जायद मर चुके हैं काबुल के करजई एयरपोर्ट पे। ये लोग तो सब, इनके पास जदीद हथियार हैं, रूस के, इंतहा पसंद तंजीमों के और अमेरिका के। क्या कराची के लोग कस्बा कॉलोनी वाकया भूल गए हैं? कराची के लोग भूल गए हैं कि किस तरह कराची का खून बहा? हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों का, हमारे पंजाबी, पश्तो, सिंधी बोलने वाले भाइयों का, वो दहशतगर्द तंजीमों का आपस में टकराव, क्या कराची में वो हालात दोबारा पैदा करने हैं? तो MQM को हमेशा नजर आता है कि उनके टारगेट के निशाने पे सिंधी हैं। सिंधी अफसर क्यों आया? सिंधियों को नौकरियां क्यों मिली? अब उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है कि बंगालियों की दी हुई जमीनें बिहारियों को दे दे। अरे भाई, बंगालियों की जमीनें वो छोड़ के चले गए, और पाकिस्तान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस पास किया 1 जुलाई 1970 को। उसके बाद तो मार्शल ख़त्म हो गया, और उसके बाद बंगाली 16 दिसंबर को ढाका अलग हुआ। अगर वो चले गए तो उनकी ज़मीनें आर्टिकल 172 के तहत वो सिंध हुकूमत के पास हैं, सिंध के अवाम की हैं। तो ये मुतालबात हमेशा उनके ऐसे क्यों होते हैं जो सिंध के अवाम से टकराव में हो? आए, मैं दावत देता हूँ, आए सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाई और बहनें मिलकर, पंजाबी, पश्तून, सराइकी, बलोच कराची के मिलकर हम ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान में मजीद इलीगल इमिग्रेंट्स की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कराची मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंध जिसका तख्तगाह है कराची, उसमें अब दम नहीं है। उसमें पहले ही ट्रांसपोर्ट के, पानी के, उसमें रोजगार के, उसमें ड्रेनेज के मसाइल हैं। इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी के अक्लमंद इराकीन या उनके सिंध दोस्त इराकीन को, कारकुनान को, फंक्शनल लीग के कारकुनान को, नवाज लीग और PTI के सालिम दिमाग कारकुनान को, MQM के मेंबरान को, जमीयत उलमा इस्लाम, JUP को, कौम परस्त पार्टियों को, सिंध की को, सिविल सोसाइटी को, कराची के अदीबों, शायरा और दानिश्वरों को और साफियों को कि अफगान रिफ्यूजीज
मुझे क्या पड़ी है और इन बहनों को और भाइयों को क्या पड़ी है कि यहाँ के इस तपते हुए फर्श पे बैठ गए, और आप भी सहाफी भाई हमारे साथ फर्श पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो दरिया भी नहीं बिछाई हुई। हमें क्या जरूरत है कि हम घर छोड़ के 3:30 3 बजे आके यहाँ बैठ गए साहब। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप सुओ मोटो नोटिस लें कि सिंध में अफगान आमद बंद की जाए। और मैं वजीर आला सिंध से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतालबा कर रहा हूँ, सिंध असेंबली से कानून साजी करें। वजीर आला सिंध आज शाम तक फौरन सिंध के तमाम डीसीज को, तमाम एसएसपीज को हिदायत जारी करें कि वो अपने अजला में गश्त करें, और सिंध के जो दाखिली रास्ते हैं गंदकोट, जैकबाबाद, घोटकी, कराची, हब से लसबेला से आने वाला रास्ता, और ट्रेन स्टेशन और बसों के अड्डे उन पे, और कंबर शदात कोट के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से फौरन डीसीज और एसएसपीज को हिदायत की जाए कि वो नज़र रखें, जो इलीगल इमिग्रेंट आता है उसको गिरफ्तार करें और उसको पुरअमन तौर पर वापस करें, उसको खाना खिला के उसकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उसको प्यार से, क्योंकि वो भी तकलीफदार लोग हैं, उनको वापस उनकी कैंपों में भेजा जाए और नादरा को पाबंद किया जाए। नादरा में करप्ट सिंधी और महाजर, करप्ट सिंधी और उर्दू बोलने वाले अफसर बैठे हैं। 2000 के लिए, 5000 के लिए वो इलीगल इमिग्रेंट्स को, ये सिंध सिंधियों का है, उर्दू बोलने वालों का है, पाकिस्तानियों का है। ये सिंध 5000 साल तहजीब है, उसमें सिंधियों और उर्दू बोलने वालों को अपने वतन में अक़लियत में तब्दील करने के लिए ये नादरा के अफसरान जो 2000-5000 में कराची का, हैदराबाद का, सक्कर का शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल और पीआरसी बना के दे रहे हैं, ये अपने आइंदा नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि नादरा के इन अफसरान पर नजर रखी जाए। मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूँ कि ये जो मुलाजिम बरतरफ किए हैं आपने, ये आप सिंध को दे कुछ नहीं रहे, सिंध से ले रहे हैं। आप सिंध के 12000 मुलाजमीन को, सुई गैस के, पीएसओ के, स्टेट लाइफ के, आईबी के, तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को, उनको रिमूव करने का सिलसिला बंद करें, टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद करें। जिनको किया है उनके लेटर्स वापस लें और उनको दोबारा अपनी पोस्टिंग्स पे रखें, और सिंध की जमीनों पे जो कब्जा है उसके हवाले से सिंध असेंबली कानून साजी करे, और जो बिल्डर माफिया ने सिंध के हजारों एकड़ों पे जमीन पे कब्जा किया वापस हो, और सिंध को इरसा अपने हिस्से का पानी दे, वापडा सिंध के पानी पे डाका बंद करे, और सिंध के वडेरे, एमएनए, एमपीए और सेनेटर्स जो बड़े जमींदार हैं उन्होंने जो निचले और छोटे आबादगारों का पानी खाया हुआ है वो उनसे वापस लेकर नीचे आबादगारों को और किसानों के हवाले किया जाए। शुक्रिया। साईं, या साहब, तव्हां दोस्त मुंतज़िर आहिनि, ॿ मिंट तव्हां यकजहती